अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा ने मेडचल में CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया आगाज। हैदराबाद में 1 लाख अफराद को CPR ट्रेनिंग फराहम करने का किया गया ऐलान। रियासत की अमन व अमा की सूरत हाल अबतर, रियासती सदर BJP बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। सिटी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 3 ता 5 मार्च को तुआल केसरी का इनेकाद। पहलवानों से शिरकत करने DCP साउथ जोन की अपील। गोल्ड स्मगलिंग रैकेट बेनकाब, ट्रैवल एजेंट के बशमूल 3 अफराद गिरफ्तार। 40 लाख रुपये गोल्ड बिस्किट जब्त। SOT साइबराबाद की कार्रवाई। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़रा KTR और हरीश राव ने मेडचल में CPR ट्रेनिंग के प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर IT KT रामाराव ने ऐलान किया कि हैदराबाद में 1 लाख अफराद को CPR की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अज़ला में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। KTR ने कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान गैर मुतादिद अमराज में इजाफा हुआ है। इनमें से सबसे अहम अचानक हरकत क़ल्ब बंद होना शामिल है। इस मौके पर KTR ने रक़्स के दौरान एक बच्चे के गिरने, जिम में वर्जिश करते हुए एक और शख्स के फौत होने का भी हवाला दिया। KTR ने कहा कि अगर इन मुकामात पर CPR के तरबियत याफ्ता लोग होते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। KTR ने कहा कि CPR की तरबियत याफ्ता अफराद को सरकारी दफातर, अवामी शॉपिंग मॉल्स, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाए। CPR सिखाने से अचानक दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात को रोका जा सकता है। इस मौके पर हरीश राव ने भी CPR की तरबियत के बारे में तफसीलात बयान की। అంటే ఈ రకంగా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో అదే విధంగా ఇప్పుడు మన మా మామయ్య, మా ఫాదర్ ఇన్ లా, హీ ఆల్సో లాస్ట్ హిస్ లైఫ్. ఆయన వాళ్ళందరూ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండేది. ఆయన అక్కడ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, పడిపోయారు. చుట్టూ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. కంగారుగా 108 ఫోన్ చేస్తారు, లేదా తెలిసిన డాక్టర్ ఉంటే డాక్టర్కి ఫోన్ చేస్తారు తప్ప అంతకంటే ఏం చేయాలో తెలియదు. అందుకే ఏమనుకున్నామంటే ఈ కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొద్దిగా నేర్పించగలిగితే, ఇప్పుడు అపూర్వ గారు చూపెట్టినట్టు, ఇంకా ఇతరులు చూపెట్టినట్టు బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగితే, అంటే సాధారణంగా నాకు చెప్పింది, నాకు తెలిసింది, ఐఎమ్ ఏ లేమ్యాన్, సో ఫర్గివ్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. నాకు చెప్పింది ఏమంటే గుండె అనేది మనిషికి అన్ని అవయవాలకి, కీలక అవయవాలకి రక్తాన్ని మరి పంప్ చేసేది గుండెకాయ. సో ఆ గుండె నుంచి రక్తం ఒకవేళ పంపింగ్ ఆగిపోతే, కార్డియాక్ అరెస్ట్లో జరిగేది అది, పంపింగ్ ఆగిపోతే తర్వాత ఏం చేసినా లాభం లేదు. మనిషి బ్రతికినా బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై కట్ అయిపోయింది అనుకోండి, బ్రెయిన్ మోటార్ ఫంక్షన్స్ అంతా కూడా బ్రెయినే మానిటర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతే మొత్తంగా మనిషి బతికున్నా జీవోత్సవంలాగా పడుండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే ఆ CPR చేయడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో ఆగిపోకుండా ఆ ఇమీడియట్గా వచ్చే రిలీఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అందరికీ నేర్పించవచ్చు. ఇది బేసిక్ సైన్స్, ఇందులో ఏమీ కాంప్లికేటెడ్ ఏం లేదని చెప్పి చాలామంది డాక్టర్స్ చెప్తే, హరీష్ రావు గారితో ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అంటే హరీష్ రావు గారు ఏమన్నారంటే కలిసి సంయుక్తంగా చేద్దాం, ఎందుకంటే దీనికి ఎంత ప్రచారం వస్తే అంత మంచిది, ఎంతమంది భాగస్వాములు అయితే అంత మంచిది అని చెప్పారు. నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా ఒకసారి చప్పట్లతో అందరూ కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే మాకు రోజుకి చాలామంది ఐడియాలు ఇస్తుంటారు, ఎక్కడెక్కడికో పోతాం, ఎవరెవరినో కలుస్తుంటాం, చాలా ఐడియాస్ చెప్తుంటారు. ఐడియాస్ వింటాం, ఇక్కడ నుంచి వింటాం, అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వదిలేస్తాం. కానీ హరీష్ రావు గారికి ఏదైనా చెప్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన రాసుకుంటాడు. ఆయనకు మంచి అలవాటు ఏంటంటే ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆయనతో, ఇప్పుడు వెంటనే రాసుకొని ఫాలో అప్ చేసి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఇందులో మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన మమ్మల్ని, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని, ఇంకా ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ని కూడా భాగస్వాములు చేసినందుకు వారికి అభినందనలు. నా రిక్వెస్ట్ హరీష్ రావు గారితో ఏంటంటే, హరీష్ రావు గారితో వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో కూడా ఏంటంటే, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले कामारेड्डी का दौरा करते हुए बांसवाड़ा में श्री तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अपने अफराद ख़ानदान के हमरा खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और अपनी तरफ से 2 किलो सोना भेंट किया। बाद अज़ां
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए बांसवाड़ा की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये और एक कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात की ज़बरदस्त सताइश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी हमेशा अवामी मसाइल को लेकर उनसे तबादले ख्याल करते रहे हैं। बाद अज़ां स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी ने भी खिताब किया। తెలంగాణ హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు దేవునూరు అని చెప్పి ఒక 50 టీఎంసీలతో ప్రాజెక్టు ఆ రోజుల్లో తలపెట్టారు. నిజాం సాగర్కి సప్లిమెంటేషన్గా అప్పటికే నిజాం సాగర్ ఉంది. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత అబాండన్ అయిపోయి దాని స్థానంలో దాన్ని కుదించి 50 టీఎంసీల నుంచి తక్కువ చేసి 30 టీఎంసీలు చేసి సింగూరు ప్రాజెక్టు కట్టినారు. వాస్తవానికి అది ఉండడం మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నప్పటికీ నిజామాబాద్ బార్డర్లో ఉండి మెదక్ జిల్లాలో ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఆ రోజు ఇది మా ప్రాజెక్టు, మా పొలాలకు నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పి నిజామాబాద్ ప్రజలే ఎక్కువ మంది దాని ఫౌండేషన్ స్టోన్కి వచ్చినారు సింగూరు ప్రాజెక్టు. ఆ తదనంతరం సమైక్య రాష్ట్రంలో మనకు సంభవించిన అనేక బాధలు, అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎన్నైతే ఉండనో అందులో మనం సింగూరును కోల్పోయినాం. దాన్ని హైదరాబాద్ మంచినీళ్ళ పేరిట దాన్ని దారాదత్తం చేసి ఇక్కడ లక్షల ఎకరాల పంటలు ఎండినా కూడా చాలా కర్కశంగా ఆనాటి పాలకులు మనకు నీళ్ళు ఇవ్వకపోవడం, ప్రతి పంటకు ఒక యుద్ధం పట్టినట్టు ఆ రోజున ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా నిరాహార దీక్షలు చేయటం. ఇక్కడ మన నిజామాబాద్తో పాటు అతి చిన్న ఆయకట్టు ఉంటుంది, 20-25 వేల ఆయకట్టు, గన్పూర్ ఆనకట్టు ఉంటుందని మెదక్లో, అది కూడా మంజీర మీదనే ఆధారం, సింగూరు మీద ఆధారం. దానికి కూడా నీళ్ళు ఇవ్వకపోవటం ఒక చాలా దారుణమైన సమస్యగా నాకు అర్థమైంది. ఇట్లాంటి ఎన్నో సందర్భాలు చూసినప్పుడు, ఎన్నో రకాల ప్రాంతాలు తిరిగినప్పుడు కలిగినటువంటి అనుభవాలు, అందులో నిజామాబాద్లో ఈ నిజాం సాగర్ ఎప్పుడో 110 ఏళ్ల కింద కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు, దీని కింద ఆయకట్టు ఉండి అన్నీ ఉండి ఇంత బాధ అనుభవించే పరిస్థితులు చూసినప్పుడు దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి, సొల్యూషన్ ఏమిటి అనే మాట ఆలోచన చేస్తాం. कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी पर भोपालपल्ली असम्बली हल्के में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक जलसे में टमाटर और अंडे फेंके गए, जिसके बाद अचानक जलसे में कशीदगी पैदा हो गई। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी रुकन असम्बली जी वेंकटरमना रेड्डी ने अपने हामियों को जलसे में भेज पर उन पर हमला करवाया है। उन्होंने रुकन असम्बली को चैलेंज किया कि उस सामने आकर अपनी ताकत का मुजाहरा करें। इस वाक़े के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई और जलसे आम के करीब मौजूद बीआरएस पार्टी के कारकुनों को रोक दिया गया, जहां काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। దమ్ముంటే నువ్వు రా బిడ్డ, నీకు చేతనైతే, నీకు చీమనెత్తురుంటే నీ అబ్బా పాడి గుడ్లు కాదు, టమాటాలు కాదు బిడ్డ. నీ ఉండండి, కూర్చో పడండి, ఉండండి. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు రా బిడ్డ, ఎవరినో పంపించి తాగుబోతున్న కొడుకుల్ని ఈడికి పంపించి నీ ఏసాలు వేస్తున్నావా? నేను అనుకుంటే నువ్వు కాదు, నీ థియేటర్ కాదు, నీ ఇల్లు కూడా ఉండదు బిడ్డ. నువ్వు ఏదో सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में बीजेपी महिला मोर्चा कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि रियासत में अमन अमान की इंतहाई अबतर हालत है और होम मिनिस्टर है या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बराए नाम ही होकर रह गए हैं। उन्होंने महिला मोर्चा कायदीन से कहा कि वो आने वाले इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दें। बीजेपी महिला मोर्चा कायद गीता रेड्डी और दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि सिर्फ बदकम्मा त्यौहार में फ़ंड्स जारी कर देने से ख़वातीन की तरक्की नहीं हो जाती।
सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए मंगल के रोज जिले भोपालपल्ली में सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की पदयात्रा पर बीआरएस के कारकुनों के हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि बीआरएस कारकुनों ने एक कायद या शख्स पर हमला नहीं किया, बल्कि इसे जमहूरियत और जमहूरी उसूलों को पामाल करने के लिए किया गया हमला तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा हनुमंत राव ने डॉक्टर प्रीति के वाक़े की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाने और इस तरह के वाक़यात दोबारा रौनुमा ना हो ऐसे इक़दामात करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। తోటి విద్యార్థుల ముందు ఏ కొద్దిగా ఇన్సల్ట్గా మాట్లాడినా కోపంగా చదువుతలేవని చెప్పినా దానికి బాధపడి ఆ అబ్బాయి కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే పిల్లలు చాలా సున్నితం. గతంలో कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों को नुमाइंदगी के ज़रिए यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने पानी की टांकी के करीब सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की और जिस्मानी माज़ूरीन में आरटीसी की जानिब से फ़राहम किए जा रहे मुफ्त बस पासेस की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर जीएचएमसी अहदेदारान योगेंद्र रेड्डी, अलवेल मैडम, MGBS इंचार्ज रामचंद्र के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अनुराधा फहीद मियाँ राम बाबू मोहम्मदी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह वीकली को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली में वाक़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़िदा तक़रीब में सदर नशीन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के हाथों ये अवार्ड पेश किया गया। डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ को आम ज़ुमरे में उनके तहक़ीक़ी मज़मून उर्दू सहाफ़त के गुमनाम हीरोज़ और शहीदों के लिए ये बावक़ार कौमी अवार्ड पेश किया गया। इस तक़रीब में सेक्रेटरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया KC नाइक के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। May I now request Mr. Syed Fazil Hussain Parvez to please come forward and accept the honor. The award in the category of financial reporting is being conferred upon ज़िले नंदियाल आंध्र प्रदेश के एल्लोर गांव में मौजूद मंडल परिषद वस्तानिया उर्दू स्कूल में कौमी यौम साइंस का अहतमाम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मंडल एजुकेशनल ऑफिसर S ब्रह्मम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि स्कूल सदर मुदर्रिस अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। अब्दुल अजीज़ ने बताया कि हिंदुस्तान के मारूफ साइंसदान श्री V रमन ने 28 फरवरी को अपने साइंसी तजुर्बात को रमन इफ़ेक्ट के नाम से मुतारफ़ करवाया था। यही वजह है कि हर साल 28 फरवरी को सरकारी सतह पर यौम साइंस मनाया जाता है। तलबा तालिबात की जानिब से तैयार किए गए तख्लीक़ात की मंडल एजुकेशनल ऑफिसर ने सताइश की और तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इनामात से भी नवाजा। इस मौके पर मंडल एजुकेशनल ऑफिसर को तहनीत भी पेश की गई।
जाऊं मदीने है हसरत मेरी, जब मैं जाऊं मदीने है हसरत मेरी, जब सब कहे ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ మనకు మధ్యాహ్న భోజన పథకము జగనన్న గోరుముద్దలో భాగంగా చక్కగా మంచి భోజనము మంచి ప్రోటీన్స్తో కూడినటువంటి ఆహారం కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు 5 రోజులు ఎగ్గుతో కూడినటువంటి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు. 5 రోజులు గుడ్డు, శనివారం వరకు, సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మీకు గుడ్డు ఇస్తున్నారు. సోమవారం చిక్కి ఉంది, బుధవారం చిక్కి ఉంది, మళ్ళీ శుక్రవారం చిక్కి ఉంది. అర్థమైందా? మీకు డే బై డే మీకు చిక్కి కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి మంచి సదుపాయాలు ఎక్కడా కూడా ఉండవు, మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి విద్యార్థులంతా కూడా చక్కగా రోజు బడికి రావాలి. మంచి ఎగ్జిబిట్స్ అన్ని కూడా सिलसिला कौमी योम साइंस 28 फरवरी और 1 मार्च 2 दिन योम कौमी साइंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस योम साइंस में बहैसियत खुसूसी मेहमान मंडल एजुकेशन ऑफिसर ब्रह्मम सर ने शिरकत की है। इब्तिदा मतलब अव्वल जमात से 8वीं जमात तक तलबा ने मुतफरीक मौजू पर मॉडल वर्किंग मॉडल तैयार किए हैं। इन तमाम मॉडल और वर्किंग मॉडल की नुमाइश के लिए रखी गई है। नेशनल साइंस डे के दौरान मंडल सतह पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्री ब्रह्मम साहब ने साइंस एग्जीबिशन का इनकाद किया और हमारी नई उम्मीद रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से वुमेंस डे की मुनासिबत से इतवार 5 मार्च को ग्लोबल ग्रामर स्कूल NBT नगर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया जा रहा है। तंजीम की सरबराह दीपा त्री रॉय के मुताबिक कई अहम शख्सियतें इस कैंप को अपना ताउन पेश कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस कैंप का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इश्तराक से मज़कूरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मज़कूरा तंजीम का क़याम 25 साल क़ब्ल मोहम्मद मज़हर जमाल की जानिब से किया गया था, ताहम अब इस तंजीम को उनके अलावा दीना अली ख़ान और तहा यास्मीन चला रही हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ़ अवामी भलाई और फलाह के काम किए जा रहे हैं। कई अहम शख्सियात ने अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए मज़कूरा कैंप को कामयाब बनाने की अपील की है, जबकि इस सिलसिले में एक पोस्टर भी जारी किया गया। So here we have Sirisha ma'am, who is the principal of the school, the Global Grammar High School, and also Chairman Sir Sunil Sir, who is unveiling the poster for the blood donation camp, which we are holding on 5th March, coming Sunday. So hope to see you all there at NBT Nagar, the Global Grammar School. You can easily access it on Google. Thank you everyone. वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण बहुत ही अमूल्य होता है। क्यों ना इस अमूल्य पल को हम काबू करें। ऑन 5th मार्च रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स ग्लोबल ग्रामर स्कूल के प्रांगण में, जहां पर नई उम्मीद संस्था बहुत ही अद्भुत रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मैं भाग लूँगी और मैं चाहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें और उनका हौसला बढ़ाएं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ दिबात्री राय। हमारी नई उम्मीद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस संडे यानी कि 5th मार्च एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है एट द ग्लोबल ग्रामर स्कूल रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स NBT नगर। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 9 AM to 2 PM। सो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप आइए और अपना कीमती वक्त देके ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि ये ब्लड गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के टीम के साथ हम लोग मिलके कर रहे हैं, ताकि मजबूर और गरीब लोगों को इसका फायदा या बेनिफिट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। Do you want to be a hero? Then come save lives by donating blood. हमारी नई उम्मीद, an organization of 25 years run by my dear friends Debatri and Dina Ali Khan,
are hosting a blood donation camp in association with Gandhi Medical College and Hospital. This is going to be held on the 5th of March, which is also a Sunday, at Banjara Hills Road number 12, the Global Grammar School. I'm certainly going to be there, and I hope you will be there too and help do our part for society. Come, let's save lives. Hi friends, Hamari Nayi Umeed is doing a wonderful cause-based program. They're conducting a blood donation camp on the 5th of March, Sunday, at Global Grammar School, road number 12, Banjara Hills. If possible, be a part of this blood donation camp. My best wishes to Hamari Nayi Umeed. Take care. Much love. అందరికీ నమస్కారం. ఈ మార్చ్ 5న రక్త శిబిరానికి నేను హాజరవుతున్నాను. మీరందరూ కూడా వస్తారని, విజయవంతంగా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నేను ఈ మార్చ్ 5వ తారీఖు రక్త శిబిరానికి హాజరవుతున్నాను. మీరందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. Hi, I'm all set to go to Banjara Hills on Sunday for a blood donation drive. See all of you there. साउथर्न पुलिस की जानिब से 3 ता 5 मार्च को कोतवाल केसरी कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीसीपी साउथ जोन साई चेतनिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिटी कॉलेज के नज़द वाक़ खुली कुतुब शाह स्टेडियम में ये चैंपियनशिप मुनक़िद होगी। 2 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वज़न के लिए हिस्सा लेने वालों को अपनी पासपोर्ट साइज़ कलर तस्वीर लानी होंगी। सीनियर कैटेगरी में 50 किलो 57, 65, 74, 86 और 97 किलो के ज़ुमरे में होंगे। ख़वातीन के लिए 50 ता 57, 60 ता 68 और टाइटल वेट के ज़ुमरे में 80 ता 120 किलोग्राम के मुकाबले होंगे। जीतने वालों को नकद इनाम, मेरिट सर्टिफिकेट्स और हार पहनाए जाएंगे। डीसीपी ने पहलवानों से इस मुकाबले में शिरकत की अपील की है। सबका आदाब। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद पहली बार हैदराबाद सिटी पुलिस कोतवाल केसरी बोल के रेजलिंग कंपटीशन रख रहे हैं, जहाँ यहाँ पे हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरियाज़ पे जितने भी रेजलर्स है उसमें पार्टिसिपेट करने का हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। ये कंपटीशन डिफरेंट कैटेगरीज़ पे, सीनियर वेट कैटेगरीज़ पे होते हैं। 50, 57, 64, 74, 80 और टाइटल वेट कैटेगरी 80 to 120 के टाइटल वेट कैटेगरी पे है। और वैसे ही फीमेल कैटेगरीज़ पे भी 2 कैटेगरीज़ पे इसमें सारी विनर्स को प्राइज़ मनी के साथ मोमेंटो, मेडल और ट्रैक सूट दिया जाता है। और जितने भी लोग पार्टिसिपेट किया सभी लोग के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और इसका वेइंग जो है कल 2 बजे कुली कुतुब शाह स्टेडियम पे, जो सिटी कॉलेज है उसका अपोजिट जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम में वहाँ पे हो रहा है। उसका जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें अपना कलर फ़ोटो के साथ वहाँ पे आएंगे तो कल सुबह वेइंग होगा और उसके साथ साथ ड्रॉ भी निकलेगा। सभी लोगों को प्रेस मीडिया की तरफ से गुजारिश है हम कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें और इस इवेंट को सक्सेस करें। थैंक यू। ये सिर्फ ओल्ड सिटी के लिए है या पूरा सिटी, हैदराबाद सिटी और सराउंडिंग एरिया से जितने भी हैं सभी लोगों के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और हमारा खास तौर से हमारा कमिश्नर सर की जानिब से ये सारी हो रहे हैं। एसएफआई कारकुनों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस वाक़ नामपल्ली के पास नारसिंगी के चेतनिया कॉलेज के इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर तालिब इल्म की ख़ुदकुशी के वाक़े को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि चेतनिया कॉलेज की मुसल्लिमा हैसियत को ख़त्म किया जाए और तालिब इल्म स्वास्तिक के मौत के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। पुलिस ने एसएफआई कारकुनों को हिरासत में लेते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। కార్పొరేట్ కాలేజ్ యాజమాన్యాల పైన
శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో ఒక విద్యార్థిని సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిందని చెప్పి మన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రతిరోజు కార్పొరేట్ కాలేజీలు అయినటువంటి శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలో లక్షల రూపాయలు ఫీజులు దోచుకున్న తల్లి విద్యార్థులను ఈరోజు కాపాడుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలో ఉంది. ఈరోజు ఆ విద్యార్థి చనిపోయిన తర్వాత కనీసం హాస్పిటల్ కూడా తీసుకుపోలేనటువంటి एसओटी साइबराबाद और राजेंद्र नगर जोन टीम ने कस्टम हकाम के इश्तराक से सोने की स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। 37 साला सैयद मोइज़ पाशा ट्रैवल एजेंट, 31 साला समीर खान और 41 साला मोहम्मद अरशद को हिरासत में लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 700 ग्राम पर मुश्तमिल 6 गोल्ड बिस्किट्स जुमला मालियती 40 लाख रुपए बरामद किए गए। मुलजिमीन के कब्जे से 13 पासपोर्ट्स भी जब्त किए गए। बहादुरपुरा पुलिस ने सरखे में मुलविस एक आदि खातून मुलजिमा को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 66 ग्राम तलाई जेवर जुमला मालियती 1,80,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 40 साला जाहिदा बेगम साकिन सुल्तान शाही को हिरासत में लिया गया, जिसने बहादुरपुरे में फातिहा सेव में शिरकत की थी और तलाई जेवर उड़ा लिए थे। गुलजार हाउस के करीब से खातून को सरखाशुदा तलाई जेवर के साथ हिरासत में लिया गया। इससे कबल संतोष नगर हदूद में भी हुई एक वारदात में मज़कूरा खातून मुलविस पाई गई है। लालापेट में एक शख्स की बैडमिंटन खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 39 साला परमेश यादव सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़े प्रोफेसर जयशंकर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए मौके पर ही फौत हो गए। इतला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। परमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया है। मुतौफ़ी परमेश मलकाजगिरी का साकिन बताया गया है। उपल रिंग रोड मेट्रो पिलर नंबर 851 के पास डीसीएम गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गया। चारशंबे की सुबह ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि डीसीएम के कैबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये वाक़या पेश आया होगा। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर आग पर काबू पाया। उपल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रामंतापुर बालाजी नगर में खुफल शिकनी के ज़रिए 1 किलो चांदी का सरखा कर लिया गया। बताया गया है कि लीलावती रिश्तेदारों की शादी की तकरीब में गई हुई थी कि रात में खुफल शिकनी के ज़रिए उसके घर में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सुबह जब उसने घर आकर देखा तो खुफल टूटा हुआ था और घर में मौजूद चांदी का सरखा कर लिया गया था। इतला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा ने मेडचल में CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया आगाज। हैदराबाद में 1 लाख अफराद को CPR ट्रेनिंग फराहम करने का किया गया ऐलान। रियासत की अमन व अमा की सूरत हाल अबतर, रियासती सदर BJP बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। सिटी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 3 ta 5 मार्च कोतवाल केसरी का इनेकाद। पहलवानों से शिरकत करने DCP साउथ जोन की अपील। गोल्ड स्मगलिंग रैकेट बेनकाब, ट्रैवल एजेंट के बशमूल 3 अफराद गिरफ्तार। 40 लाख रुपये गोल्ड बिस्किट जब्त। SOT साइबराबाद की कार्रवाई। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।